شروع کرتے ہوئے ہمیں جانا پڑے گا سب سے پہلے ابتدا میں۔ دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو اس وقت کوئی رولا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پتلا بنایا کھنکتی ہوئی مٹی سے اور اس کو سامنے رکھ کر کہا کہ میں اس کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ آپ کا ڈیٹو کاپی ہوتا ہے بالحاظ اختیار۔ اللہ نے یہ ساری زمین اس پتلے کو دینی تھی اور اس کے آگے اولاد کے لیے جنت اور جہنم کا انتظام تھا۔ اب جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم امیجن کر ہی نہیں سکتے، لیکن وہاں جو لوگ موجود تھے، فرشتے تھے، جنات تھے، انہوں نے وہ دیکھی ہوئی تھی اور وہ سارے کے سارے اس کے اسپائرنٹ تھے۔ اب جب انہیں پتا چلا کہ یہ تو اس کو ملنے والی ہے تو وہاں ایک جو سب سے بڑا لیڈر تھا ان کا، مقرب تھا اللہ کا، اور اسے یہ مان تھا کہ سارا کچھ اسے ملے گا۔ اتنے ہزار سال عبادت کی، اتنے لاکھ سال سجدے کیے، یہ میری ہسٹری ہے، تو اگر اللہ کچھ دے گا تو مجھے دے گا۔ اس نے انکار کر دیا تو اللہ نے پوچھا، قرآن میں یہ ڈائلاگ موجود ہے سورہ ہجر میں، کہ تم نے کیوں انکار کیا؟ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اس کو اللہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اس نے قرآن میں وہ بیان کیا، اس نے کہا کہ اللہ تو میرا رب ہے اور تو نے مجھے اس کی وجہ سے ذلیل کیا، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ آخری دن تک مجھے موت نہ دے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بولا کہ جا تو مہلت دیے جانے والوں میں شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے اور بھی مہلت دیے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کون کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں اس کو تیرے سے غافل کروں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا اور اٹیک کروں گا۔ دوسری بات جو اس نے کی کہ اس کا وہ رستہ جو تیری طرف آتا ہے نا، میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گا اور اس کو اغوا کروں گا۔ یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا، اغوا کرنا، کہ ایک بندہ کہیں اور جانا چاہ رہا ہے، اسے فورسفلی کہیں اور لے جائے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف اس پر اٹیک کرے گا جو اللہ کی طرف جانا چاہتا ہو۔ اگر آپ اللہ کی طرف نہیں جا رہے تو اس کو آپ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 3، اس نے کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ تیری پیدا کی ہوئی تخلیق کو بدل دے، حکم دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جن سے وہ یہ کام لے گا نا، یہ اس کے سپیریئر ویپن ہوں گے، جو اس کو مان لیں گے، اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے انسانوں میں سے۔ میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ تیری تخلیق کو بدل دے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے الومیناٹی کی بات۔ اب آپ کو ایک حدیث کی طرف لے چلتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دجال کا ذکر کیا تو ایک جملہ بولا جو بہت عجیب تھا کہ حضرت نوح کے بعد کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو دجال کی فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ اس کا مطلب کہ نوح کے بعد کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کا کوئی ریلیشن ہے دجال کے ساتھ، اور دجال اس کا آخری سپیریئر موسٹ سفسٹیکیٹڈ ویپن ہے۔ اب اس کی جو ارینجمنٹ ہے نا، اس نے وہ ارینجمنٹ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرنے کے بعد اس نے اس کے بیٹے کو اغوا کیا، پھر وہ لے گیا، اس نے بستیاں بنائی، زنا عام کروایا، اس طرح کی چیزیں کرتا کرتا حضرت ادریس علیہ السلام کا دور آیا تو اس کے کوئی 10-12 کمانڈر جنرل اس کی فوج میں اس وقت تک ڈیولپ ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک معاہدہ کیا آپس میں، بائبل کا ایک ورژن ہے، ایتھوپین بائبل اس کو کہتے ہیں، اس میں ایک بک ہے، بک آف اینوک۔ اینوک کہتے ہیں ادریس کو، اخنوک ان کا نام ہے، قرآن میں حضرت ادریس ہے اور بائبل میں اخنوک ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اتھینٹک ایتھوپین بائبل ہے، وہ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے ٹریس ملتا ہے جس سے لگتا ہے کہ ایتھوپین بائبل سب سے زیادہ اتھینٹک ہے، اگرچہ وہ بھی تبدیل شدہ ہے کیونکہ ایتھوپیا کا جو کنگ تھا، آج کا ایتھوپیا اس وقت کا حبشہ تھا، اور اس کا جو کنگ تھا نجاشی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے بغیر دیکھے، بغیر ملے پہچان لیا تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خط اس کے ساتھ دو محفوظ ہیں آج بھی تاریخ میں، وہ اتنے بے تکلف ہیں کہ جس سے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت پرانی دوستی ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندے کو آپ جانتے نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ آپ کبھی گئے نہیں وہاں، اور آپ اس کو پہلا خط لکھ رہے ہیں اور آپ لکھ رہے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں، ان کو پناہ دینا اور ان کا خیال رکھنا، اور وہ پناہ بھی دیتا ہے اور خیال بھی رکھتا ہے۔ اور پھر وہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں بذریعہ وحی اطلاع دی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ فوت ہو گیا ہے، آؤ اس کا نماز جنازہ پڑھیں۔ ایک ہی غائبانہ نماز جنازہ
जनाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, जिसकी बेस पर आज हम गायबाना नमाज जनाजा पढ़ते हैं, वो नजाशी का है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हबशियों को कभी बुरा ना कहो, जन्नत के 12 सरदारों में से 4 हबशी हैं। इसका मतलब है कि वो इथियोपिया में क्रिश्चियन था, वो उस बाइबल को पढ़ रहा था, उस बाइबल को पढ़ के उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर मिले पहचान लिया। इथियोपियन बाइबल में जो बुक ऑफ इनॉक है वो कहती है कि किसी एक प्लेनेट से ये कोई मखलूक लेके आया। उस वक्त पोर्टल खुला हुआ था और ये इब्लीस जो है वो चंद लोग ऐसे लेके आया जो उसके कमांडर थे, जिसको नेप्थेलियंस भी कहा गया। उन्होंने आके इंसानों की औरतों के साथ इश्को माशका किया और फिर रिलेशनशिप कायम किए और उसमें से एक अजीबो गरीब किस्म की नस्ल पैदा हुई, जिनके मुंह जो थे वो जानवरों जैसे थे और जिस्म इंसानों जैसा था। ये आबादी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने ये रिलेशन ना सिर्फ इंसानों के साथ इस्टेब्लिश किए बल्कि जानवरों से भी किए। उन्होंने हर जगह अपना सीड प्रिजर्व करने की कोशिश की और एक ऐसी मखलूक पैदा हुई जो कहा ना कि मैं उनको हुक्म दूंगा कि तेरी तख्लीक बदल दे। अब आपको समझ आई होगी कि वो तख्लीक बदल दी, उसने तख्लीक बदली और उस बदली हुई तख्लीक से कहीं दज्जाल पैदा हुआ। हम इस पे 100% नहीं है, लेकिन उसी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त से डराया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से नहीं डराया। उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई। ज्योग्राफी में जो ढांचे मिलते हैं ना हमें 20, 25, 33 फुट लंबे, ये इंसान नहीं थे, वो मखलूक थे। आप ये देखें कि अब दुनिया के 4 कोने ले लें, मिस्र अफ्रीका में, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड, रशिया, साइबेरिया, ये 4 मुख्तलिफ कॉर्नर्स में जो इल्यूमिनाटीज के बुत हैं उनकी शक्ल से अब मुझे बताएं कि उस वक्त ये कम्युनिकेशन तो थी ही नहीं। स्कीमोस कहाँ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया कहाँ, तो वहाँ भी वही बुत उसी शेप का, यहाँ भी बुत उसी शेप का। जो नेप्थेलियंस वो मखलूक जो 10-12 जर्नल आए थे, उनके नाम अगर आप पढ़ें तो वो वही नाम है जो मक्का के बुतों के थे। उज़्ज़ा, हबल, जहाँ जहाँ इंसान किया उसके पीछे पीछे वो गया। इसीलिए तो फिर नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल की जो तबलीग की, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई कि इंसानियत की असल नस्ल जो थी वो खतरे में पड़ गई। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया, कहा कि पाक जानवरों के जोड़े उठाओ, वो जानवर, वो इंसान जिन्होंने अभी तक इनसे मुलाकात नहीं की, उनको उठाओ और बाकी सारी की सारी दुनिया अल्लाह ने बहा दी, फिनिश कर दिया, पानी फेर दिया। इसके अलावा कोई और चांस था भी नहीं, पानी फेरने के अलावा कोई चांस नहीं था, क्योंकि उन्होंने जानवरों में भी अपना सीड डाला और कुछ कहते हैं कि दरख्तों तक में अपना सीड प्रिजर्व कर लिया था। तो अल्लाह ने वो सारी की सारी दुनिया को फिनिश कर दिया। एक दफा इंसानी नस्ल को वापस प्योरिटी की तरफ लेकर आए अल्लाह ताला, फिर अल्लाह ताला ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के जरिए वो पोर्टल बंद करवाए ताकि इंसान की नस्ल प्रिजर्व रहे, वो इस लेवल पर न चला जाए कि इंसान की नस्ल ही बिगाड़ दे, जेनेटिक्स ही बिगाड़। अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है इल्यूमिनाटी का। तो उसने फिर इंसानों में से वो ग्रुप बनाए जो उसकी पूजा करते थे, उसके जर्नलों की पूजा करते थे, जिन्होंने उसे खुदा माना हुआ है। दज्जाल के इस्तकबाल के लिए एक चीज तैयार होती रही, एक तहजीब तैयार होती रही आहिस्ता आहिस्ता। ये सारे का सारा हज़्ब शैतान है। आप सुन के हैरान होंगे कि ये ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी जिसे हम कहते हैं ये कब लिखा गया? 1 मई 1776। ये 1 मई मजदूर डे नहीं है। मैंने कहा था ना ये दज्जाल की इब्तिदा और इंतहा में ये दोनों चीजें दरमियान में है। 1 मई ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी लिखने की डेट है। पूरी दुनिया में ये नाफिज किया गया कि ये मजदूर डे है। अब आप $1 के पीछे बनी हुई तस्वीर पर गौर करें, उसके पीछे एक पिरामिड बना हुआ है और उस पर एक आंख बनी हुई है, एक आंख। अब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू की तरफ आए। उन्होंने फरमाया कि दज्जाल एक आंख वाला होगा। उसका सिंबल क्या है? एक आंख। फिर कुरान में ये लफ्ज आया कि मैं इस जमीन को भर दूंगा ज़ीनतों से, याशियों से, अट्रैक्शन से। मैं यहाँ इतनी अट्रैक्शन पैदा करूंगा कि ये तेरी तरफ आ ही नहीं सकते। 1 आई इसी का सिंबल है और उसके नीचे जो लिखा है ना, कभी उसे भी पढ़िएगा, 4 लफ्ज लिखे हुए हैं जिसका मतलब है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वही इल्यूमिनाटी ऑर्डर। एक्चुअल में वो शैतान की पूजा है। आगे चलें। एक वाकया हुआ जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। एक्चुअल में इसकी जर्नी जो उसके डेस्टिनेशन थी वो इंडियन रूट को डिस्कवर करना था। स्पेन की मलका थी, उससे तो वो सारा कुछ लेकर आया था कि मैं हिंदुस्तान का एक ऐसा रास्ता मुख्तसिर दरियाफ्त करूंगा जहाँ से हम सोना ला सकेंगे। वो अटलांटिक ओशन में जब उसने अपना जहाज डाला, पता नहीं उसके नक्शे गलत हो गए, कैसे चला गया। एक वक्त
आया कि उसके अपने लोगों ने कहा कि अगर 48 घंटों के अंदर अंदर साहिल ना मिला तो हमने तुम्हें पकड़कर समंदर में फेंक देना है, क्योंकि उनके पास खाने की कमी हो गई थी, उनकी हालत खराब हो रही थी। अब वहाँ एक ऐसा वाकया होता है, जब उसको ये थ्रेट मिलते हैं ना, ये बुक्स में लिखा हुआ है, तो उसको एक हाई बीम ऑफ लाइट नजर आती है, दूर से सैकड़ों मील की दूरी से बहुत बड़ी लाइट नजर आती है। वो अपने साथियों को कहता है कि वो देखो लाइट, जमीन है, और वो उसी लाइट की सिमत फिर चलता है। और फिर जब 36 घंटे गुजरते हैं तो उसको परिंदे चहचहाते नजर आते हैं। उनको समझ लग जाती है कि जमीन नजदीक है। दुनिया का कोई साइंटिस्ट, दुनिया का कोई जियोग्राफर बता दे, साबित कर दे कि वो लाइट क्या थी, जबकि उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी और अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था उस वक्त, और आग इतनी बड़ी जलाई ही नहीं जा सकती कि वो सैकड़ों हजारों मील समंदर की दूरी से नजर आए। वो क्या था? अमेरिका इज द स्टेशन हेडक्वार्टर ऑफ इल्यूमिनाटी एंड दज्जाल। दिस इज 100% करेक्ट। आप एक दफा चले जाएं, आप वापस वहाँ से आ ही नहीं सकते। उसने उसको जीनतों से भर दिया, इतनी खूबसूरत लाइफ, इतनी एंजॉयमेंट। एक और बात बताती चल, हबल एक बहुत बड़ा बुत था मक्का में, जिसको पूरा अरब अपना देवता मानता था। उसकी शक्ल और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की शक्ल 99% मिलती है। अब मुझे ये बताएं, अमेरिका दुनिया के उस कोने में वाक़या है, पिरामिड से इसका क्या ताल्लुक है? आप अपने नोट पर पाकिस्तान का नोट निकाल कर देख ले, क्या छुपा हुआ है? वही पाकिस्तान की मस्जिद, लाहौर फोर्ट। भाई अमेरिका ने क्यों लगाया हुआ है अपने डॉलर के ऊपर पिरामिड? पिरामिड वाज द फर्स्ट स्टेशन हाउस ऑफ इल्यूमिनाटी। ये बिल्कुल गलत थ्योरी है कि पिरामिड जो है ये बनी इसराइल ने बनाए हैं। पिरामिड पता नहीं किन्होंने बनाए हैं। पिरामिड तो तूफाने नूह के वक्त मौजूद थे इस दुनिया में। दुनिया आज तक समझ ही नहीं सके ये 1,000 टन से लेकर 25,000 टन तक पत्थरों का वजन है, 550-600 फुट की बुलंदी पर ले जाए गए हैं। उनमें इतनी प्रिसीजन है कि एटीएम का एक कार्ड उनके दरमियान से आज भी नहीं गुजर सकता। इतनी प्रिसीजन कटिंग कैसे होगी आज भी मुमकिन नहीं है। और फिर निकोला टेस्ला को इस राज तक पहुंच गया था और वो मारा गया। पिरामिड में एनर्जी पैदा करने का पूरा सिस्टम मौजूद है। जो आपकी वायरलेस एनर्जी है ना, ये सारी की सारी निकोला टेस्ला ने पिरामिड से उठाई है। और इसकी हिस्ट्री तो पढ़े, क्यों मारा गया। ये तो ऐसी चीजें हैं जो आज बोर्ड पर पड़ी हुई हैं। और आप देख लें, क्या अमेरिका किसी को अलाउ करता है कि वो अपना रिलीजन स्टेट लेवल पर प्रोपोगेट करे? तो फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट बाइबल पर हलफ क्यों लेता है? दुनिया के किसी मुसलमान सदर, बादशाह, वजीर आजम ने आज तक कुरान पाक पर हलफ लिया है? जिस दिन लेगा 1 घंटे में फारिग कर दिया जाएगा। आप जिस मर्जी इस दुनिया के स्टेप को उठा लें, ऊपर से कुछ और है और नीचे से कुछ और इल्यूमिनाटी पूरा ग्रुप है जो शैतान की पूजा करता है। उनके अपने सिंबल्स हैं। मैडोना कंसर्ट करती थी तो कुछ सिंबल बनाती होती थी, जो आप गौर कर लीजिएगा वो क्या है। अब एक और टर्मिनोलॉजी है फ्रीमेसन्स। फ्रीमेसन्स एग्जैक्ट वही चीज है कि ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ और। फ्रीमेसन्स का आगाज होता है नाइट टेम्पलर से। अब मैं आपके ऊपर हैरत का एक और दरवाजा खोलने लगी हूँ। एक चट्टान है जिसको हम कहते हैं सखरा, बैतुल मक़दस में है, हमारे लिए वो बड़ी मुकद्दस है। हम कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ मेराज की रात पहुँचे तो उन्होंने उस चट्टान पर कयाम किया था, या हम कहते हैं कि आपने अपनी सवारी वहाँ उस चट्टान के साथ बांधी थी। उस चट्टान के ऊपर 70 हिजरी में हमारा एक बादशाह था, अब्दुल मलिक बिन मरवान। उसने खूबसूरत गुम्बद सोने का बना दिया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी है, हमारे नबी यहाँ से गुजरे हैं, तो उसको प्रिजर्व कर लिया। आज जो आप मस्जिद अक्सा में जाते हैं तो गोल्डन डोम जो नजर आता है वो वही डोम ऑफ सखरा है। अब जब उन्हों का एक पोप था, अर्बन II क्रिश्चियन था, अर्बन II ने एक आग लगा दी दुनिया में कि मर जाओ बगैर तो तुम्हारे मुकद्दस मकामात तो मुसलमानों के पास हैं। उन्होंने अटैक किया और वो सक्सेसफुल हो गए फलस्तीन पर कंट्रोल हासिल करने में। तब वो गुम्बद सखरा के नीचे गए तो उन्हें वहाँ गारें मिली, वो नेट पर भी मौजूद हैं। वहाँ से उनको कुछ बुक्स मिली। कहा जाता है कि जो बुक्स मिली वो जादू की बुक्स थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के नीचे छुपाई थी, जो कि कबाला और काला जादू से रिलेटेड थी। और कुछ और चीजें और कुछ तख्तियों की शक्ल में उन्हें मिली। और जो लोग थे जिन्होंने वह सारा फतह किया और फिर वहाँ कंट्रोल किया तो उनको नाइट टेम्पलर्स का खिताब दिया गया। नाइट टेम्पलर्स ने अपनी एक तंजीम कायम की क्योंकि उनके पास वो कुछ राज भी आ गए थे, कुछ बुक्स भी आ गई थी। ये फर्स्ट बैंकिंग कॉन्सेप्ट था जो शुरू किया गया और उसकी वो फीस लेते थे। वहाँ से इंटरेस्ट बेस शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते उनका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि पूरी यूरोपियन कंट्री उनके दस्ते करम पर आ गई। इतने अमीर हो गए, इतने लोग
लोग उनकी इज्जत करने लगे, पूजे जाने लगे ये नाइट टेम्पलर। तो फिर उन्होंने बादशाहतें बदलनी शुरू कर दी। 88 साल तक ये ड्रामा जो है ये चलता रहा और वहाँ उन्होंने फिर नीचे वारिस रिसर्च की, पूरा नेटवर्क है इसके नीचे। और डॉक्टर अब्दुल सलाम का मानना है, ये इस पर हम दावा नहीं कर सकते कि वहाँ पोर्टल भी मौजूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक क्यों गए, वहीं से आसमान की तरफ क्यों नहीं गए? बनी इसराइल की पहली आयत पढ़िए कि मैं उसे ले गया अपने बंदे को एक रात में मस्जिदुल हराम में से मस्जिद अक्सा तक, जिसके माहौल में मैंने बरकत रखी है। माहौल में कहा, गौर करिएगा, जमीन में नहीं कहा, उसके माहौल में हमने बरकत रखी है ताकि मैं दिखाऊं उससे अपनी कुछ निशानी। अब यहूदी उसके पीछे क्यों हैं? मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए वो इस सखरा तक पहुंचना चाहते हैं। उन्हें पता है कि हमारे मसीह यहाँ से एंट्री देगा, हमारा दज्जाल है वो यहाँ से एंट्री देगा, वो उस पोर्टल तक पहुंचना चाहते हैं। नाइट टेम्पलर्स जब इतने स्ट्रांग हो गए, फिर मुसलमानों पर सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, उनके ऊपर भेजा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन सबको भगा दिया, दोबारा बैतुल मकदस पर कब्जा कर लिया, ईसाइयों को, नाइट टेम्पलर्स को वहाँ से भगा दिया। फ्रांस का एक बादशाह था, उसने इनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक करके तो इनको ज़िबा कर दिया, जितने मिले उसको खत्म कर दिया। अब जितने बच गए ये वहाँ से भाग गए और उस वक्त अमेरिका सेटल हो रहा था, दरियाफत हो चुका था, लोग जोक दर जोक अमेरिका सेटलमेंट के लिए जा रहे थे। तो वो नाइट टेम्पलर्स अमेरिका पहुंची और फिर वो इल्यूमिनाटीज कहलाई। यहाँ जो फ्री मेसनरी बन रहा था नाइट टेम्पलर्स की तबाही में, ये जब चर्च बना इसके दरमियान में 300 साल का वक्त है। अब 3 सदियों के बाद ये लोग फिर सरफेस पे आए और उन्होंने कहा जी हम वॉलंटरली मजहब के लिए काम कर रहे हैं और हम मिशंस हैं। उन्होंने इस तरह तंजीम बनाई जिस तरह नाइट टेम्पलर्स बनाते थे, वही सिंबल उन्होंने अडॉप्ट किए जो नाइट टेम्पलर्स के सिंबल थे। अब दरमियान में 300 साल ये कहाँ रहे, ये सिंबल कैसे प्रिजर्व हुए, कोई पता नहीं चलता। मशहूर फ्री मेसन्स मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जॉन एफ कैनेडी, जॉर्ज डब्ल्यू हुश कैसी बातें कर रहे हैं। ये वही नेटवर्क है फ्री मेसन्स का और इल्यूमिनाटीज का। नाम मजहबी फ्री रखा हुआ है, फ्री मेसन्स, और खुद हलफ ले रहे हैं बाइबल के ऊपर। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। और फिर देखें, फिर वही उसी तरह गामजन है कि मैं तख्लीक बदल दूंगा, मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर दूंगा। अब जाइए, आप उस कुरान को कहाँ से निकालेंगे आप अपनी जिंदगी से? क्या हो गया है हमें? आपके पास इतना बड़ा मॉडल, इतनी बड़ी चीज आपके घरों में, आपके बेडरूम में मौजूद है। वो चीख कर क्या कह रहा है कि वो कहता है इनमें से बंदों को हुक्म दूंगा। वही बंदे हैं जो तख्लीक बदल रहे हैं, वो उसी के ऑर्डर पर काम कर रहे हैं जो तुम्हारा अदुव्वुल मुबीन है। और वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि आपके हर घर में पहुंच गए हैं, घुस गए हैं।